Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Odyssey. My name is Mahi. Today we are going to discuss BEGC 101 Indian Classical Literature Block 2 Unit 3, the sequel to the Dicing a Reading. Before we begin today's topic, let me give you a quick overview. We have already completed Block 1 and we have also covered Block 2 Unit 1 and Unit 2. If you haven't watched those lectures yet, please do check them out first because they will help you to understand today's unit much better. Now let's start today's topic. In this unit, we are going to discuss the continuation of the Mahabharata story after the first game of dice. We will cover the following topics one by one. Introduction, plot to vanquish the enemy, the importance of loyalty and dharma, the second game of dicing and the beginning of exile, departure to the forest. So without wasting any time, let's begin with our first topic, introduction. This unit continues the events of the dicing. देखो, इस यूनिट में प्रीवियस चैप्टर द डाइसिंग की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम, यानी जो इवेंट्स पहले चैप्टर में हुए थे उन्हीं का नेक्स्ट पार्ट हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. Pandavas leave Hastinapur. Duryodhan along with Sakuni and Karan secretly plans another game of dice. अब देखो, जब पांडव हस्तिनापुर छोड़कर वो चले जाते हैं तब दुर्योधन, शकुनी और करण सीक्रेटली मिलकर ना एक डाइस गेम प्लान करते हैं. उनका इंटेंशन होता है कि पांडवास को फिर से ट्रैप करना था. ओके. He convinced King Dhritarashtra that the Pandavas, humiliated by their earlier defeat, may seek revenge. अब देखो, दुर्योधन किंग को कन्विंस कर लेता है कि पांडवास अपनी पहली डिफीट और ह्यूमिलेशन के बाद फ्यूचर में रिवेंज ले सकते हैं. इसी रीजन से वो सेकेंड गेम का आइडिया देते हैं. ट्रस्टिंग शकुनी's gambling skills, दुर्योधन proposed a second match to send the Pandavas into exile. अब देखो, दुर्योधन को शकुनी की गैम्बलिंग स्किल्स पर पूरा ट्रस्ट था. उसे पता था कि शकुनी चीटिंग से गेम जीतता है, इसलिए वो सेकंड मैच प्रपोज करता है ताकि पांडवास को एग्जाइल भेज सके. Although Yudhishthira understands that another game will bring disaster, he accepts the king's commands out of respect and duty. अब देखो, युधिष्ठिरा ऑलरेडी समझ जाता है कि सेकेंड गेम जो है ना उसके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आएगा, लेकिन अपने धर्म, रिस्पेक्ट ऑफ द किंग और सेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से वो किंग का ऑर्डर मान लेता है. द पांडवास लूज वंस अगेन and according to the term of the game they must spend 12 years in exile and 1 year in disgrace. अब देखो, पांडवास एक बार फिर गेम हार जाते हैं. गेम की कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें 12 साल एग्जाइल और 1 ईयर इनकॉग्निटो डिस्गाइज में रहना पड़ता है. फाइनली, ड्रेस्ड इन deerskin clothes, they leave for the forest, marking the beginning of a long period of suffering and hardship. अब देखो, आखिर में पांडवास डियर स्किन क्लोथ पहनकर फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं. यहीं से उनकी लॉन्ग जर्नी ऑफ सफरिंग, हार्डशिप एंड स्ट्रगल्स स्टार्ट होती है. ये एग्जाइल उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज बन जाता है. The next topic is plot to vanquish the enemy. After the Pandavas leave Hastinapur, Duryodhan realized that although they have lost their kingdom, they are still alive and may return to take revenge. अब देखो, पांडवास के हस्तिनापुर छोड़ के जाने के बाद दुर्योधन को एक बात समझ आ जाती है. उन्होंने किंगडम तो लूज कर दिया है, लेकिन वो अभी भी अलाइव है, जिंदा है वो. इसलिए फ्यूचर में वो रिवेंज लेने के लिए वापस आ सकते हैं. Driven by jealousy, fear, and his desire to become the sole ruler, he begins planning to destroy them completely.
अब देखो, जेलसी, फियर और अपने आप को सोल रूलर बनाने की एम्बिशन की वजह से दुर्योधन डिसाइड करता है कि पांडवास को कंप्लीटली एलिमिनेट करना होगा। Along with Shakuni and Karan, he convinced King Dhritarashtra that allowing the Pandavas to live freely would be a great mistake. अब देखो, फिर दुर्योधन, शकुनी और करण मिलकर किंग को कन्विंस करते हैं कि पांडवास को फ्रीली जाने देना फ्यूचर के लिए डेंजरस हो सकता है। To frighten the king, Duryodhan exaggerated the Pandavas' anger, describing Bhima, Arjuna, Nakula, and Sahadeva as powerful warriors preparing for war. अब देखो, किंग को और ज्यादा डराने के लिए दुर्योधन पांडवास के एंगर को एग्जैजरेट करता है। वो बताता है कि भीमा, अर्जुना, नकुला और सहादेवा वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत पावरफुल वॉरियर्स है वो लोग। He claims they will soon attack the Kauravas and destroy the kingdom. दुर्योधन ये भी क्लेम करता है कि पांडवास जल्द ही कौरवास पर अटैक करेंगे और पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय कर देंगे। Although many elders believe the Pandavas are the rightful heirs, Duryodhan refused to accept their claim. अब देखो, कोर्ट के बहुत सारे एल्डर्स मानते थे कि पांडवास ही एक्चुअल राइटफुल एयर्स है, लेकिन दुर्योधन कभी भी उनके इस राइट को एक्सेप्ट नहीं करता। He proposed another game of dice in which the losing side must spend 12 years in exile and 1 year in disguise. Restarting the exile if discovered. अब देखो, इसलिए दुर्योधन एक और गेम ऑफ डाइस प्रपोज करता है। इस बार कंडीशन और भी स्ट्रिक्ट होती है। इस बार क्या होता है कि 12 इयर्स एग्जाइल और 1 ईयर इनकॉग्नाइटो अगर डिस्गाइज के दौरान पहचान लिया गया तो पूरा एग्जाइल दोबारा स्टार्ट करना होगा। तो ये दुर्योधन बहुत बड़ा जो है प्लान करता है ये सारा चीज कि पांडवास को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। Blinded by his love for his son, Dhritarashtra accept the plan. अब देखो, जो किंग है वो अपने बेटे से इतना ज्यादा अटैचमेंट था उनको कि वो सही और गलत का डिफरेंस नहीं देख पाते। इसी वजह से वो दुर्योधन का प्लान एक्सेप्ट कर लेते हैं। Thus, Duryodhan's conspiracy sets the stage for the Pandavas' exile and the future Kurukshetra war. अब देखो, इसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से पांडवास को एग्जाइल जाना पड़ता है और यही इंसिडेंट फ्यूचर कुरुक्षेत्र वॉर की फाउंडेशन बन जाता है। So scholars, now we know how Duryodhan secretly planned against the Pandavas and how the second game of dice was arranged. But one important question still remains. Why did Yudhishthira agree to play again, even though he knew the consequence? So let's understand that in our next topic, the importance of loyalty and dharma. This section highlights how loyalty and dharma guide Yudhishthir's actions. अब देखो, इस सेक्शन में हमें ये समझने को मिलता है कि लॉयल्टी और धर्मा युधिष्ठिर की हर डिसीजन को गाइड करते हैं। उनके लिए राइट पाथ फॉलो करना रिजल्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। Although he knows that Shakuni will cheat and that a second game of dice will bring disaster, he returns because he believes it is his duty to obey King Dhritarashtra. अब देखो, युधिष्ठिर को पहले से पता था कि शकुनी फेयर गेम नहीं खेलेगा और वो सेकंड गेम डेंजरस होगा, लेकिन वो धृतराष्ट्र की कमांड को मना नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि एल्डर की बात मानना उनकी ड्यूटी है। देखो स्कॉलर्स, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट याद रखना, इग्नू में अगर क्वेश्चन आए व्हाई डिड युधिष्ठिर प्ले द सेकंड गेम ऑफ डाइस, तो सिर्फ ये मत लिखना कि ही लाइक्ड गैम्बलिंग, ओके, ये इनकम्प्लीट आंसर है। अपना मेंशन करिएगा कि his commitment to dharma, respect for Dhritarashtra and sense of duty were the main reasons. ये पॉइंट एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा, ओके।
Yudhishthir accepts that human life is governed by destiny and refuses to disobey the king's command. अब देखो, युधिष्ठिर बिलीव करते थे कि लाइफ में जो भी होता है उसमें डेस्टिनी का भी रोल होता है, इसलिए वो किंग के ऑर्डर को इग्नोर नहीं करते. द सेक्शन ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग प्रॉमिस इन महाभारत. अब देखो, महाभारत हमें सिखाता है कि अपने प्रोमिसेस और वोज को निभाना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो. Characters like Bhishma and Karna remain loyal to their vows even in difficult situations. अब देखो, भीष्मा और जो कर्ण है दोनों ही अपने प्रॉमिस के प्रति लॉयल रहते हैं. कभी कभी उनके डिसीजंस उनके लिए पेनफुल भी होते हैं, लेकिन वो अपनी ओथ नहीं तोड़ते. Thus, dharma, loyalty and commitment to one's oath are presented as the highest moral values in the epic. अब देखो, इस महाभारत में धर्म, लॉयल्टी और कमिटमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज माना गया है. So scholars, now we understand why Yudhishthir accepted the second game despite knowing its consequence. But what actually happened when the game began? Let's move to our next topic, the second game of dicing and the beginning of exile. The second game of dice marks the complete downfall of the Pandavas. यह सेकेंड गेम ऑफ डाइस पांडवास की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है. पहले गेम में उन्हें बहुत कुछ लूज किया था, ठीक है, लेकिन इस बार उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है. Although Yudhishthir knows that returning to the game will bring disaster, he accepts King Dhritarashtra's command because of his deep commitment to dharma and respect for his elders. अब देखो, युधिष्ठिर को पता था कि दोबारा गेम खेलना उनके लिए डेंजरस होगा, लेकिन अपने धर्म, रिस्पेक्ट और ड्यूटी की वजह से वो किंग के ऑर्डर मानते हैं और दोबारा खेलने जाते हैं वो गेम. Once again, शकुनी defeats him through decide. अब देखो, जैसे फर्स्ट गेम हुआ था वैसे ही इस बार भी शकुनी चीटिंग करके गेम जीत जाते हैं. According to the agreed conditions, the Pandavas are sentenced to 12 years of exile in the forest followed by 1 year in disguise. अब देखो, गेम की कंडीशन के अकॉर्डिंग पांडवास को 12 ईयर एग्जाइल और उसके बाद 1 ईयर डिस्गाइज में रहना था. देखिए स्कॉलर्स, एग्जाइल का सिंपल मीनिंग होता है अपना घर, अपने किंगडम छोड़कर किसी जगह रहना. महाभारत में पांडवास को पनिशमेंट के रूप में फॉरेस्ट भेजा गया था, इसलिए इसे एग्जाइल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में वनवास भी कहते हैं. और डिस्गाइज का मतलब होता है अपनी असली आइडेंटिटी को हाइड करके रखना. अगर 13 ईयर में पांडवास को अगर किसी ने आइडेंटिटी कर लिया, ठीक है, पहचान लिया उनको, तो उनको दोबारा से फिर वो 12 साल का एग्जाइल स्टार्ट करना पड़ता. If they are recognized during the 13 year, they must repeat the entire exile. अब देखो, इस कंडीशन की वजह से उनका लास्ट 1 ईयर और भी डिफिकल्ट था, क्योंकि उन्हें हर वक्त अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी पड़ती थी. After their defeat, Dushashan proudly celebrates the Kauravas' victory and insults Draupadi by asking her to abandon the Pandavas. अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, गेम के बाद दुशासन बहुत प्राउडली सेलिब्रेट करता है, ठीक है, और द्रौपदी का इंसल्ट करता है. साथ ही वो उन्हें पांडवास को छोड़ने के लिए भी कहता है कि आप पांडवास के पास तो कुछ बचा नहीं, आप उसको छोड़ के इस साइड आ जाओ. तो वो इंसल्ट करता है द्रौपदी का. भीमा filled with anger takes tribal vows promising to kill Duryodhan, Dushashan and Shakuni in the future. अब जो भीम है उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल के बाहर आ जाता है उसका गुस्सा. वो सबके सामने प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी को जरूर पनिश करेंगे. Soon after, the sage Narada predict that
The Kauravas will be destroyed within 13 years because of Duryodhan's injustice and the Pandavas' revenge. अब देखो, इसके बाद सेज नारदा भी प्रेडिक्ट करते हैं कि दुर्योधन के इनजस्टिस की वजह से कौरवास का डिस्ट्रक्शन तय है। देखो स्कॉलर्स, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखिए, महाभारत में भीमा अपनी प्रोमिसेस कभी नहीं भूलते। जो वोज वो यहाँ लेते हैं, उन्हें वो बाद में कुरुक्षेत्र वॉर में कंप्लीट भी करते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में लिखने से आंसर और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं एक दफा। Thus, the second game of dice not only sent the Pandavas into exile but also make the great Kurukshetra war inevitable. अब देखो, यहीं से कुरुक्षेत्र वॉर की एक्चुअल बिगनिंग होती है। अगर सेकेंड गेम ऑफ डाइस नहीं होता तो शायद महाभारत का वॉर भी कभी नहीं होता, है ना। लेकिन अब सेकेंड गेम ऑफ डाइस हो गया। द्रौपदी का एक बार इंसल्ट तो कर ही दिया था दुर्योधन और दुशासन ने अपने असेंबली में। जब दुशासन उनको खींच के लेके आया था, घसीट के लेकर आया था उस असेंबली में, तो एक बार तो उसने इंसल्ट कर दिया था, लेकिन उसने दोबारा फिर इंसल्ट किया, दोबारा इनको इनवाइट किया इन लोगों को कि दोबारा से आके गेम खेलो, और फिर द्रौपदी का इंसल्ट करा उसने। तो इस वजह से कुरुक्षेत्र वॉर अब होना ही है। तो ये लास्ट टॉपिक है, डिपार्चर टू द फॉरेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। आफ्टर लूजिंग द सेकेंड गेम ऑफ डाइस, the Pandavas prepared to leave their kingdom and began 12 years of exile, followed by 1 year in disguise. देखो, सेकेंड गेम हारने के बाद पांडवास के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें अपना किंगडम छोड़कर 12 इयर्स की एग्जाइल और उसके बाद 1 year डिस्गाइज में रहना पड़ता है। ये उनकी लाइफ का एक कंप्लीटली न्यू फेज था। Before their departure, Vidura encourages them by reminding them of their past experience, knowledge, and ability to adapt to difficult situations. फॉरेस्ट जाने से पहले विदुरा पांडवास को मोटिवेट करते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने लाइफ में पहले भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है और हर बार उनसे कुछ ना कुछ सीखा है उन्होंने। ओके, He explains that the Pandavas have learned valuable lessons by living in different places and receiving guidance from greatest sages such as Vyasa, Narada and Asita. Okay. विदुरा कहते हैं कि पांडवास को ग्रेट सेजेस जैसे व्यासा, नरादा और असीता से नॉलेज मिली है। इसी एक्सपीरियंस की वजह से वो फ्यूचर की चैलेंजेस को और अच्छे से फेस कर पाएंगे। According to Vidura, this exile will make them wiser, stronger, and more capable leaders. देखो, विदुरा बिलीव करते हैं कि ये एग्जाइल पांडवास को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देगा। फ्यूचर में वही एक्सपीरियंस उन्हें बेटर लीडर्स बनाएंगे। देखो स्कॉलर्स, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखना, महाभारत में एग्जाइल सिर्फ पनिशमेंट नहीं था, बल्कि एक पीरियड ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट भी था। फॉरेस्ट में रहकर पांडवास और भी मेच्योर एंड स्ट्रॉन्गर बन गए। ये पॉइंट एग्जाम आंसर में लिखोगे तो आंसर और भी इंप्रेसिव लगेगा। तो नेक्स्ट, एज द पांडवास लीव, ईच ऑफ देम एक्सप्रेस देयर इमोशन इन अ सिंबॉलिक वे। जब पांडवास हस्तिनापुर छोड़ते हैं, तब हर कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स को अलग अलग सिंबॉलिक एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करता है। Yudhishthir cover his face to control his anger. Bhima walks it with his arms spread wide, showing his strength. Arjuna scatters sand as a sign of future destruction, while Nakula and Sahadev walk covered with dust. देखो, युधिष्ठिर अपने फेस को कवर करते हैं ताकि वो अपना एंगर कंट्रोल कर सके। भीमा अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए चलते हैं और अर्जुना रास्ते में सैंड गिराते हुए चलते हैं, जो फ्यूचर डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। नकुला और सहदेव भी साइलेंटली अपना सॉरो एक्सप्रेस करते हैं। द्रौपदी follows them in the same blood stained garment,
mourning her humiliation and cursing the Kauravas, predicting their destruction in the future. अब देखो, द्रौपदी वही ब्लड स्टेन गारमेंट पहनकर पांडवास के साथ चलती है। वो अपनी ह्यूमिलेशन को याद करते हुए कौरवास को कर्ज करती हैं और कहती हैं कि एक दिन उन्हें अपने एक्शंस का रिजल्ट जरूर मिलेगा। The citizens of Hastinapur openly support the Pandavas and weep as they leave. हस्तिनापुर के लोग भी पांडवास के साथ सिंपैथी फील करते हैं। जब पांडवास सिटी छोड़ते हैं तब बहुत से सिटीजन इमोशनल होकर रो पड़ते हैं। नेचर itself appears to protest against the injustice through earthquake, lightning, meteors and the cries of wild animals. अब देखो, महाभारत यहाँ एक ब्यूटीफुली सिंबलाइज यूज करते हैं। अर्थक्वेक, लाइटनिंग, मेट्योर और वाइल्ड एनिमल्स की क्राइस ये शो करती है कि नेचर भी इस इनजस्टिस से अग्री नहीं करती। दिस ominous signs foreshadow the downfall of the Kauravas and the coming Kurukshetra war. ये सारे साइन यानी बैड साइन, ये वार्निंग की तरह है। ये पहले ही इंडिकेट कर देता है कि फ्यूचर में कौरवास का डाउनफॉल होगा और कुरुक्षेत्र वॉर को अब कोई भी नहीं रोक सकता। So scholars, that's all for today's lecture. With this, we have successfully completed BGC 101 Block 2 Unit 3. In the next video, we will continue with Unit 4. So don't miss it because every unit is connected with the next one. If today's lecture helped you understand the topic a little better, then do support English Odyssey by liking this video, sharing it with your classmates and subscribing to the channel. Remember, learning English is not about memorizing, okay? It's about understanding and we understanding it together, one unit at a time. Thank you so much for watching. I'll see you in the next lecture. Until then, keep learning, keep growing. Bye, scholars.